ले चार्ट लेयर प्रिंसिपल, राइट? नाउ ये क्या बताते हैं, एट इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम इफ यू चेंज प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट और कोई भी चेंज करें तो वो इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन ये बताते। ठीक है, सपोज ये एक रिएक्शन लेता हूं, N2 प्लस 3H2 is equilibrium to NH2, एक इक्वेशन है। उसके पहले सिंपल कॉन्सेप्ट, एक यू शेप ट्यूब, ठीक है, ये वाटर लेवल है, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, reactant to product. If I am pouring some water here, then immediate observation क्या है, इधर तो water level थोड़ा increase होगा, लेकिन at the same time थोड़ा after 1 minute what will happen, again this is getting equilibrium. उसका मतलब अभी इधर देखिए तो क्या होता है, the water is moving towards the product. Now I am asking the question, if I am adding some reactant, the equilibrium moving which side? Towards reactant side, towards product side, towards product side जाएगा, towards product side. Suppose I am adding something, 1 लीटर पानी इधर डाल दिया, उस टाइम में क्या होगा, इधर से उधर जाएगा, ठीक है। So in the same case, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन में if I am adding some more nitrogen, if I am adding some more nitrogen, पहले तो इक्विलिब्रियम बन गया था, then equilibrium is disturbed. If I am adding something means equilibrium will be disturbed. Whenever it is disturbed, again it will attain equilibrium. Again it will attain equilibrium. For that attaining equilibrium, how it is moving? This is only our discussion. Is it goes right side or left side? It will goes right side. Okay, so now the first point here, concentration effect. Concentration effect में क्या है? If you add reactant, the equilibrium moves कहाँ? Towards product side. इसके क्या बोलते हैं हम? Generally forward reaction towards product side. Similarly, if you add some product को add किया, then equilibrium moves towards reactant side. ये तो backward reaction हो गया। बस इतना ही है फर्स्ट पॉइंट। ले चार्ट लेयर प्रिंसिपल ये बताते हैं, इफ यू ऐड द रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट साइड जाएगा, इफ यू ऐड द प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट साइड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट, कंसंट्रेशन, देन प्रेशर। इफ यू आर चेंजिंग द प्रेशर, अगेन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, अगेन इट विल बी मूव। Now the thing is, if you increase in the pressure increasing, तब क्या होगा, ये रिएक्शन में क्या होगा? सपोज आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब क्या है, एक तो ये पूरा एक कंटेनर में है, ठीक है, एक N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम to NH3, right? ये पहले इतना था, again I am increasing the pressure. ये पहले था initial and it is the final and दबा रहे, तब क्या होगा, molecule come to closer or molecule will be decompose, come into closer. जनरली कंडेंसेशन में भी वही होता है ना, वेपर को दबा देते हैं फिर लिक्विड बनेगा, और ज्यादा करें तो सॉलिड बनेगा। At the same time temperature should be decreased, ठीक है। अब इधर क्या कर रहे हैं मैं, I am increasing the pressure, then what will happen, these molecules combine and forming NH3.
अभी हम क्या लिख सकते हैं ये रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन विल कैरी फॉरवर्ड, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज फॉरवर्ड, इन जनरल ऑब्जर्वेशन ये है more number of molecules converting into less number of molecules. Okay, so the reaction, the equilibrium, we are talking about equilibrium, the equilibrium move from more molecules to less molecules, or more number of moles to less number of moles. We cannot tell the reactant to product, क्योंकि कुछ रिएक्शन में ऐसा उल्टा भी हो सकता है. I will give you one example. So more molecules to less molecules. ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब इधर नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं. अब ये रिएक्शन में क्या होगा, अमोनिया प्रिपरेशन में by increasing the pressure forward reaction takes place. But one more equation, suppose decomposition है कोई, ठीक है, calcium carbonate is decomposed into calcium oxide plus carbon dioxide. ये भी एक कंटेनर में है, ठीक है. अभी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. अभी फॉरवर्ड चलेगा क्या बैकवर्ड चलेगा? सी कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये तो गैस है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड विच विल स्ट्रेन ओनली गैस के ऊपर इफेक्ट होता है. इफ यू कंप्रेस देन गैस विल कम बैक, तो फाइनली बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. नहीं ये स्टेटमेंट याद है, स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं. क्या दिया हम स्टेटमेंट? While pressure is increasing, equilibrium move from more molecule to less molecule. Again here you have to consider only gases. Pressure effect कभी भी गैस के ऊपर रहता है, ठीक है. ये इक्वेशन में सर CO2 दो ज्यादा है, तुम्हारा आंसर तो सही होगा लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है. CO2 ओनली गैस काउंट करना है, ओनली गैस मॉलिक्यूल्स काउंट करना है, ठीक है. प्रेशर इंक्रीजिंग टाइम में हो गया. देन इफ यू अंडरस्टूड इज क्लियर, देन T डिक्रीज तो उल्टा होगा, T डिक्रीज, ठीक है. तो पूरा रिवर्स, उसका ऊपर वाला क्या समझ गया, उसका उल्टा. अब मैं ये रिएक्शन में सपोज इफ आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, देन व्हाट विल हैपन? ये रिएक्शन में इफ आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, P डिक्रीजिंग में क्या होगा? मॉलिक्यूल गोइंग सेपरेट. देन सेपरेट मींस बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है. नाउ सपोज दूसरा रिएक्शन ऐसा है, H2 plus I2 is equilibrium to HI. ये रिएक्शन में मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, क्या होगा? क्या होगा? प्रोडक्ट में कितना मोल्स है? हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स. रिएक्टेंट में कितना मोल्स है? 2 मोल्स. मैं प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्या था? मोर मॉलिक्यूल्स टू लेस मॉलिक्यूल. कहां मोर मॉलिक्यूल? तो दोनों तो इक्वल है. इधर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, इधर भी उतना प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है. So whenever number of moles are equal in reactant and product, there is no change by changing the pressure. What is not changing? Equilibrium is not changing. We are talking about equilibrium, ठीक है. So उस टाइम में ध्यान में ये रखना है, सब तो गैसेस स्टेट में होना चाहिए. कोई दूसरा इक्वेशन में एक तो सॉलिड रहता है, एक तो लिक्विड है सपोज, उस टाइम में एप्लीकेबल नहीं है. ओनली प्रेशर इफेक्ट कभी भी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ही होगा, राइट. कंसंट्रेशन प्रेशर इज क्लियर, न्यू स्टूडेंट समझ गए आप, राइट. नेक्स्ट कंसंट्रेशन प्रेशर. नेक्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर, अभी
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? In which reaction heat will be released or received? Heat will be received, right? So A is forming B plus heat. Which reaction it is? This one is exothermic. This one is endothermic. एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. ठीक है. अभी हमारे टॉपिक में टेम्परेचर इफेक्ट कैसे होगा इक्विलिब्रियम में. ठीक है, इक्विलिब्रियम लेंगे. इक्विलिब्रियम का सिंबल तो ये है ना. राइट. टेम्परेचर इफेक्ट. पहले मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं. ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूं. उस टाइम में सी तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट इज रिलीजिंग. Already heat is releasing. If I am increasing the temperature, temperature increasing, then it's nothing but वो तो पहले U-shaped tube दिया है. If I am increasing the temperature, heat means वो reaction forward में जाएगा, backward में जाएगा. सिर्फ एक्सोथर्मिक का देखो, backward जाएगा क्योंकि heat तो already है and giving heat. मतलब indirectly I am adding the product. If I am adding the product, the reaction will go towards reactant side. Yes. So in case of exothermic, if you increase the temperature, it will go backward reaction. ठीक है. एक्सोथर्मिक में ठीक है. एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक में heat I am adding. कहाँ है हीट? रिएक्टेंट साइड. आई एम एडिंग समथिंग एट रिएक्टेंट साइड मींस क्या, कैसे होता है रिएक्शन? टुवर्ड्स प्रोडक्ट. सो फॉरवर्ड रिएक्शन. ये समझ गए तो टी डिक्रीज तो उल्टा होगा. ठीक है, वाइस वर्सा. टी डिक्रीजेस वाइस वर्सा. उसका सिमिलरली देख. टेम्परेचर इफेक्ट हो गया. नेक्स्ट two more effects are there. One is catalyst. Catalyst का कुछ है ही नहीं. Catalyst का इतना काम है वो रिएक्शन को स्पीड बढ़ाता है. The equilibrium attained very fast. वो 1 घंटे में रिएक्शन होने वाला रिएक्शन if you use the catalyst 10 मिनट में हो जाएगा. बस इतना ही कैटलिस्ट का काम. Equilibrium is not changed. Already equilibrium में है. If you use the catalyst, उससे कुछ लेना देना नहीं. ठीक है, it is not changing the product quantity or reactant quantity. So indirectly no effect. Next, last, inert gas. ये तो यही रिएक्शन था. ठीक है, यही रिएक्शन में सपोज आई एम एडिंग सम मोर गैस. वो इनर्ट गैस क्या है? हीलियम गैस हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस है इनर्ट गैस में. एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इफ आई एम एडिंग सम एक्स्ट्रा गैस, तो ये पहले ये तो 1 atm में है. ये कंटेनर में फिक्स्ड कंटेनर था, 1 लीटर कंटेनर था. कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रेशर था 1 atm. ठीक है, आई एम एडिंग एक्स्ट्रा हीलियम. दिस 1 atm विल बी इंक्रीज और रिमेन सेम और डिक्रीज. एक कंटेनर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. आई एम एडिंग एक्स्ट्रा हीलियम गैस इनसाइड, पंपिंग इनसाइड. द प्रेशर इनसाइड प्रेशर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज और सेम. इंक्रीज, ज्यादा गैस आने पर ऑब्वियसली इंक्रीज होता है. सो प्रेशर विल बी इंक्रीज. सो in that case pressure will be increased. suppose 2 atm हो गया. उसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रेशर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो एज इट इज पहले कितना था? 1 atm था, अभी भी 1 atm होगा. वो कितना गैस एक्स्ट्रा आ गया उसका प्रेशर बढ़ रहा है, बस इतना ही. सो हमको Kp का फार्मूला क्या रहता है? प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर बाय रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर. वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो कुछ चेंज हुआ नहीं.
So Kp, no change. So first point is at constant volume में if you add inert gas there is no change. There is no change. ठीक है? Last point. अभी मैं at constant pressure में कर रहा है. At constant pressure. अभी कंडीशन तो बोल दिया मैं. पहले 1 atm था. I am adding helium gas. In general क्या होगा? Pressure will be increase. लेकिन तो कंडीशन ये बोल रहे 1 atm ही रहना है. 1 atm रहना है. उस टाइम में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फर्स्ट और इनिशियल आई कैन से इनिशियल में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था 1 atm. अभी हीलियम आने के बाद PCO2 विल बी 1 atm और लेस देन 1 atm और मोर देन 1 atm. मोर देन तो चांस ही नहीं है. मैं ऑलरेडी कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया. 1 होगा क्या 1 से कम होगा? 1 से कम होगा क्योंकि हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर एक मतलब CO2 का 1 से तो कम होगा. सो पार्शियल प्रेशर तो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है. सो Kp विल बी चेंज. सो if you add the inert gas at constant pressure equilibrium will be changed. First point here, equilibrium will be changed. कब? कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर में चेंज होगा. फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्यों चेंज हो रहा है समझ गए? कांस्टेंट प्रेशर था, कुछ एक्स्ट्रा गैस आ गया मतलब तो इसका पार्शियल प्रेशर तो चेंज हो रहा है. पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली इट विल बी चेंज. ठीक है, चेंज हो गया. अभी कैसे चेंज होगा? आप फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? वो क्वेश्चन पूछे तो सिमिलर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट. हम प्रेशर में क्या लिखा था? More number of molecules coming to less number of molecules, ना? Same concept. Similar pressure effect. हमको ये पता चला है पहले कब चेंज हो रहा है. कांस्टेंट प्रेशर में चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है मतलब उस प्रेशर इफेक्ट में क्या लिखा है, क्या समझ गया है, वही है. सेम केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीटेड. ठीक है. एक इक्वेशन था वन न्यू डायरेक्ट फार्मूला कैसे है नहीं डायरेक्ट फार्मूला है. टेम्परेचर पे डिपेंड होता है बोल दिया ना. दैट इज log K1 by K2 equal what is the formula? Delta H by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है. टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. कैसी आगे बात किया ना. ठीक है. कोई दो रिएक्शंस दे देते हो 2 डिफरेंट टेम्परेचर में, ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीटेड है. आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी है. ये 50% चैप्टर कंप्लीटेड. यू सॉल्व द क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक में और हमारे स्टेट बोर्ड में भी वो चैप्टर अलग अलग है. ठीक है. वी कैन स्टार्ट टुमारो. Ionic equilibrium.